in brief, our schedule is we begin by listening to our young scholars who are studying in many different premier institutions from across the country about the role of English जो भाषा है उसको किस तरीके से कैंपस और क्लासरूम में उसका प्रभाव पड़ता है, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे यंगर स्कॉलर्स को क्लास में एक्सक्लूडेड फील कराने के लिए, उसके ऊपर हमारी पहली चर्चा है. उसके बाद we will be joined by so in this first panel we will have Vishakha, Chele, Rahul, Ghope, Shadab and Nilesh who will be in the discussion. After that we will be having our second panel जिसमें we will have some senior speakers Rahul Sonpimple, Siddesh Gautam, Shirin Azam and जो मिलके इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि ये जो सवर्णा और मेन स्ट्रीम एकेडेमिया है, कल्चरल स्पेसेस है, जो मेन स्ट्रीम कल्चरल स्पेसेस है, उसमें मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस हैं. एंड इन द नेक्स्ट उसके बाद हम लंच ब्रेक के बाद हम ओवरसीज एकेडेमिया के लिए जो हमारे बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड आज ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं फॉरेन में जाके पढ़ने का, उसमें एक्चुअली क्या चैलेंजेस हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, उससे एक्चुअली उस रास्ते में जाने में क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, उसके ऊपर एक चर्चा होगी जहाँ पर आरती काड़े, विकास बागड़े और दीपाली तीगे हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. और फिर हमारा डे 2 का फर्स्ट स्पीक पैनल होगा जहाँ पर वी हैव अगेन emerging first time researchers, early track academics जो अपने ओरिजिनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे. एंड फाइनली हमारा आज का जो A2 का जो सेशन है अयनकाली कॉन्फ्रेंस का, हम इसे क्लोज करेंगे विद ए राउंड टेबल डिस्कशन ऑफ 9 ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के करियर, एजुकेशन, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ काम कर रहे हैं. तो हमारे साथ ये बहुत सारी संस्थाएं और लोग जुड़े हैं इस कॉन्वर्सेशन में, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है. ये आज का पूरे दिन का प्लान है, लेकिन ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा अपने पहले पैनल में जाते हैं. एंड आई हैंड इट ओवर टू यू निलेश भाई एंड आवर पैनलिस्ट्स विशाखा, राहुल एंड शादाब. वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू. ओवर टू यू. Thank you, Ravi. Thank you. Good morning and Jai Bhim to all. My name is Nilesh. Welcome to the second day of our first Ayyankali Academic Conference. Our first panel is on English in the classroom and campus, cultural capital and pedagogy. Our today's panelists are young scholars pursuing their higher education in India's reputed institutes and universities. Let me first introduce you to all our speakers today. First, our first speaker of the panel is Shadab Perumal. Shadab is pursuing his PhD from Delhi University. Our second speaker will be Vishakha Chele. Vishakha is a third-year student pursuing her BA LLB from Government Law College, Mumbai. Our third speaker is Rahul Ghope. Rahul just finished his postgraduate diploma in agricultural and rural management with statistical methods and analytics from Indian Statistical Institute, Jharkhand. Yesterday in our last session, Dr. Bodhi asserted how in Indian academia or in the university system, language is used as a tool of power and dominance in the university system. With lack of social and cultural capital and institutional support, it becomes very, very hard for Dalit Bahujan students to navigate these spaces. So let's understand through the experience of our panelists how they manage to pave through these spaces. I would like Shadab, our first panelist, to share his experience in the classroom and campus with regards to English. All the panelists will have 10 minutes to share their experiences. Shadab, please go ahead. Thank you, JB. First of all, I'm not good at English still, even though I'm doing my PhD. And I am from a coastal village from Kerala, and I did my education in Malayalam medium. And regarding the English, it has a very, very profound impact in your everyday life, especially if you are into academia. And I started learning English from the 5th standard.
I should say that from the 5th standard, and I had English as a paper till the graduation. Every teacher after teacher repeatedly reminded me that the first orientation would be, this is the toughest subject. So we will internalize this feeling that this is the toughest subject and how would I study this. Then every teacher will also repeatedly reminded you most of the student will struggle to pass this subject, and this most of the might be the student from marginalized section, and there will be very few gifted student in the class. They might have different background and everything. And as a student, if you look at my own grade card, you will get the impression that I tried to pass. My only intention was to somehow to get passed in this subject. And later I completed my graduation in 2016. Then I joined in a ICSSR project. That was also in one of the state universities in Kerala. Later, I got an opportunity to work as an assistant, means academic associate in IIM Kozhikode, where the real experience really came. IIM is a really elite institution, and see, if you have some kind of people who look like you, they have similar experiences, or if they have a real mentor, then it would be quite easy for us. However, I like to share two experiences from IIM. This is also close. This how you speak English, your voice. See, even my Malayalam is also not considered as standard Malayalam, because I am from a coastal village, and similarly my English is also not considered as standard English. How I look, what I wear, what is my chapel, everything is associated with. They will make the impression that before you speak English, they will make the impression you cannot speak English properly. One day I was having a coffee with my friends, and one professor came to me and he told me, you are inappropriate. This word inappropriate is the most scary word in my life. We were always trying to fit into this system, and he suddenly came to me and gave me advice that you are inappropriate. We had so many imagination of resistance, but nothing works. I just frozen. But at the same time, I had a really good system there, support system there, so I could survive there. Later we will also, this inappropriation will, this the single word inappropriation, or you are inappropriate, will be, it is like a scary word, and we will put ourselves in constant surveillance. What is inappropriate in me? Is it my way of speaking, or is it my language? That is very scary. I still scare the word inappropriate. If somebody from any elite institution will say me, you are inappropriate, that will destroy me completely. And later, means I was assisting a teacher who was having classroom discussion, and if this classroom discussion really went wrong and people make noises, teacher will say it was like a fish market. And this my belongingness will constantly reaffirmed as an outsider, and you are not belonging. Even the words they use it will prove that you are not belonging to this place, and this kind of feeling is always with us. Even if we know English, then we cannot speak there. No, that will be we just stuck there. But I was happy that there was some people with my similar experiences there, so I could survive. After that, I cleared JRF last time, and I joined bids for my PhD first time. But I could not find any single person with similar experiences. So then, even if outside the classroom they will be saying, or in the chat or in the WhatsApp, they will be saying very different thing I have no idea about. They will be saying about different gadgets I never seen or never heard of. So I could not connect with them. It is you constantly try to be associated with them, but they are very evasive. You cannot reach them. So I was searching for a similar kind of experienced person, sir, but I could not find. And I thought
I should better relieve from them, and I joined at Delhi University. But apart from this, another point I would like to try is that if you do not know the English, and you become a joke, a subject of joke for everybody. One day, my professor in I am communication teacher told me, procure me some pen. I didn't know the meaning of procure. I looked back her as if I didn't understand. Then she laughed and she told me, give me a pen. She could have told her, give me a pen, but she told, used a sophisticated language, and it was, they constantly laugh at her for not knowing this kind of words. And if you don't know these words, like, this is very strange, and I don't know how to express that. And similarly, one of my friends also got the similar experiences, and it became a constant joke for her. And her professor was told her he would be going away on sabbatical, and sabbatical is a place or some place, and he is going there. But sabbatical, we didn't know about the sabbatical. What is sabbatical? This, it doesn't come in our daily life. And sabbatical is also of kind of leave this is allowed to professor. But and this absence of knowing this kinds of sophisticated word become a joke among them. And this, they have a very sophisticated sugar coated word. Even if you draft a complaint, they will say that this complaint, forget about this studying and articulating our word. We cannot even put forward a simple complaint. If you wrote a complaint, they will say this is not look pleasant, or this is not pleasing, or this, your words are very arrogant, because we don't know the sugar coated word, no? So they will say this kind of thing, and constantly push her into some kind of corner. So I will say one more thing. Most of the students ask, how do we improve our language? Means everybody suggests watch English movie and read books. So regarding the reading books, I also follow that. Most of the time we do not understand what is in the book, but I suggest that it is like developing a relationship with book, and it is like every other kind of relationship. Sometimes we feel very good, and sometimes we feel very bad. So the relationship with book is also a kind of developing a relationship. Sometimes some part of the book will be very interesting for us. So with this, I stop. Thank you, JB. Thank you, Shadab. Rightly said, large population of our students pursue their schooling and graduation in their mother tongue or native language. Lack of assistance and support by these institutions deeply entrenched caste prejudices leads many of our students to further put in their shell or drop out from these spaces. Thank you, Shadab. Thank you for sharing your experiences. Now I invite our second speaker, Vishakha, to please share her experiences. Vishakha, you have 10 minutes. I am audible, sir. Yes, yes. Go ahead. First of all, Jamie, all of you. My name is Vishakha Chele, and I am pursuing my law degree from Government Law College, Mumbai. और मैं आपके साथ अपने कुछ जो एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किए हैं इन जो GLC में, और वो इंग्लिश के बारे में है, क्योंकि जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मराठी स्कूल में हुआ है। जो मेरा एजुकेशन है 12th तक वो मराठी में हुआ है। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे नालंदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर सकी और कर रही हूँ खुद को। अभी भी मैं जो मतलब जो GLC में मैं अभी भी जो फेस कर रही हूँ, या फिर जो भी मेरे साथ जो भी मैं कर रही हूँ, तो वो एक कहीं ना कहीं मतलब मैं नालंदा की वजह से हूँ, जहाँ पर मैं भी टिकी हूँ वहाँ पर। अभी मेरा एडमिशन 2019 में हुआ, और
फिर इंग्लिश जो क्लासरूम में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब क्लास अटेंड कर रही थी इंग्लिश में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर। और मुझे फिर मैंने सोचा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और रात को मैं वो रोज सुनती थी कि वो मैं उसको समझने की ट्राई करती थी कि वो क्या क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैं एक दिन, मतलब मैं मेरे प्रोफेसर से बात करने के लिए गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मराठी में भी दे सकते हो, मतलब महाराष्ट्र में जो मेरा जो जीएलसी है उसमें आप 2 लैंग्वेज में है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और मराठी में भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप मराठी में कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ठीक है कुछ नहीं, कि हमारे यहाँ अलग से हम आपके क्लासेस वगैरह लेंगे जो आप उससे लड़ रहे हो कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप मराठी में वगैरह कर सकते हो। फिर बाद में फिर दूसरे दिन हमारे प्रोफेसर आए और वो हमें ऐसे पढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया क्लास में कि सीबीएसई से कौन कौन से बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया, तो वो बोल रहे थे कि वो सीबीएसई को 3rd क्लास बोल रही थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं तो स्टेट बोर्ड से हूँ, तो वो मुझे क्या बोलेगी। और फिर मैंने उनसे कभी बात नहीं की, उनसे कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। और क्योंकि मुझे खुद को एम्बैरेस फील हो रहा था कि वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। और ऊपर से मुझे जो इंग्लिश का है वो पहले से ही बहुत डर था कि वो समझ में आता था, लेकिन कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ वो नहीं समझता था। और हमारे जीएलसी में एक मूड कोर्ट हो करके एक जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने, जो आप आगे कर सकते हो उसके लिए। तो उसमें एक पार्टिसिपेट जो है वही उसमें कर सकते हैं जिनको इंग्लिश आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही इंसिडेंट है जो कि मैं उसमें मुझे वो आता है, क्योंकि उसमें वो हमें डिबेट के ये देते थे कि आपको इस पर आपको उसमें बोलना है, आपको उसके बारे में पता है, लेकिन भी फिर भी आप उसके लिए पार्टिसिपेट नहीं करें क्योंकि आपका जो इंग्लिश है वो आपका बहुत वीक है, आप उस पर बात नहीं कर सकते। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इंग्लिश इज अ मेरिट, वो डिसाइड करते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इसमें बात कर सकते हो अच्छे से, तो भी आप में मेरिट है, अदरवाइज नहीं है। या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि वो आपको ऐसे जज करते हैं, आपके कपड़ों से लेके आपके बात करने तक का ढंग, आप कैसे चलते हो कैसे रहते हो, वो सब जज करते हैं। और मेरे ऐसे ज्यादा फ्रेंड भी नहीं है जिनके साथ में अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकूं। और मेरा जो मतलब जो लॉकडाउन के पहले मेरा एक सेमिस्टर ही मेरा ऑफलाइन हुआ, उसके बाद तो मेरा ऑनलाइन हुई है सभी क्लास। तो उसके बाद जो ऑनलाइन में मुझे एक जो प्रॉब्लम आई थी, हमारे एक प्रोफेसर ने हमें एक वेब सीरीज है शूट करके, और वो अमेजॉन प्राइम पर ही अवेलेबल है। तो उससे उन्होंने कहा कि आपको इससे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और आपको वो प्रेजेंट करना है एक एक को। तो मेरे इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि मेरे पास फर्स्ट तो की जो अमेजॉन प्राइम है वो भी नहीं है, ऊपर से जो कनेक्टिविटी रहती है कि आपको उसके लिए अच्छे से कनेक्टिविटी भी चाहिए, वो भी नहीं है। और उसका सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है, और इस मतलब वो भी बहुत महंगा होता है। तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत फेस करनी पड़ी वो प्रॉब्लम। और जो हमारे प्रोफेसर है, अगर आपके ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं और आप कोई क्वेश्चन उनको पूछते हो, तो वो सिर्फ मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तब भी आप उसमें बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो मेरे लिए ये बहुत ही इंग्लिश को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बैड रहा है, क्योंकि कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं रहता है। कि मैं जो यहाँ अभी भी जो पढ़ रही हूँ और जो हूँ यहाँ पर, वो क्योंकि नालंदा की वजह से, क्योंकि मैं सर से भी बात करती थी और सर भी बहुत मतलब पढ़ाते थे वगैरह अलग से कुछ,
तो उसी हिसाब से, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मैं वहाँ मतलब मैं मुझे पता है जो मैं नालंदा से आई हूँ, मुझे पता है ये सब बातें थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमारे जो अदर बच्चे हैं वो तो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, मतलब उनको वो ये नहीं हुआ तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाखा। आपने बहुत बहुत सही कहा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये जानना, ये कैंपसेस में हमारे प्रोफेसर्स, हमारे दोस्तों के लिए एक मेरिट जानने का या फिर जज करने का एक जरिया बन जाता है। और विशाखा, मैं आपको बताता हूँ, हमारे काफी सारे लोग इस एक्सपीरियंसेस से और सिमिलर एक्सपीरियंसेस से जा रहे हैं। आप ऑलरेडी उस कैंपस में है, यू आर देयर, यू आर इन थर्ड ईयर, आप आप कर रही है, आप डटे रही है, आप बिल्कुल इसमें सक्सीड होंगी। इसी के साथ मैं अपने थर्ड जो स्पीकर है राहुल घोपे, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। राहुल, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस, यू हैव 10 मिनट्स। ओके सर। जय भीम टू ऑल। मेरा नाम राहुल गोपे है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आता हूँ। मेरा मतलब 10वीं तक का एजुकेशन मदर टंग में मतलब मराठी लैंग्वेज में ही हुआ है। और आफ्टर 10th मैंने साइंस स्ट्रीम लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग की। हालांकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश में था, लेकिन सब टीचर्स वगैरह जो है वो मराठी में एक्सप्लेन करते थे। और कॉलेज में भी जो चलता था सब मराठी में बोलते थे, मतलब इंग्लिश का कुछ ज्यादा ये नहीं था। और मतलब बड़ा कुछ एम नहीं था कि वह इंजीनियरिंग करने के बाद में 20-25 हज़ार का जॉब मिले तो ठीक है। लेकिन एक दिन औरंगाबाद में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उधर अनूप सर का एक प्रोग्राम था, तो वो हमने अटेंड किया। तब हमें मतलब मुझे हायर एजुकेशन के बारे में वो प्रोग्राम में सर से पता चला। तो मतलब मुझे लगा कि वह मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने को कुछ पता नहीं। तो फिर 2018 में जब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो मैं वर्धा में नालंदा एकेडमी में ज्वाइन हुआ। तो तब मतलब तब पता चला कि हायर एजुकेशन में जाना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए अच्छी सी। और हमारा क्या, हमें सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स आते थे जो कि इंजीनियरिंग में पढ़े थे। तो 10 महीने बहुत मेहनत किया। जो भी मतलब सर ने पढ़ाया, हमने खुद से किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और मतलब थोड़ी बहुत वोकैबुलरी हमारी अच्छी हो गई, मतलब थोड़े बहुत शब्द मतलब वर्ड जो है तो आने लगे। बाद में मेरा मतलब 2019 में आईआईटी गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ डेवलपमेंट स्टडी के लिए। हालांकि वो कुछ हेल्थ इश्यू के कारण मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ 10-15 दिन में 10-15 दिन वहां पर मैंने क्लास अटेंड किए थे। तो दो लड़के थे नालंदा से, एक मैं और एक रोशन था, तो दोनों लगे थे आईआईटी गुवाहाटी में। तो डायरेक्ट गांव से निकल के आईआईटी गुवाहाटी जाके पहुंचे। तो उधर का मतलब इन्वायरमेंट ऐसा सब, मिरिंडा हाउस, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लड़के थे क्लास में। मतलब इंट्रोडक्शन के दिन सब ऐसे इंग्लिश में बोलने लगे और हम सिर्फ देखने लगे, भाई अपना आएगा तो कैसे बोलेंगे, इतने 60 जन की बैच थी। तो मतलब एक डर सा रहता था इंग्लिश का, मतलब आता तो है लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे, सर क्या बोलेंगे, ऐसा एक डर रहता था। तो फिर उस दिन कैसे वैसे हमने इंट्रोडक्शन दिया हमारा इंग्लिश में। और प्रोफेसर जो थे आईआईटी के सब इंग्लिश में, मतलब उनके एकदम हाई लेवल की इंग्लिश रहती थी, जो कि वर्ड थे वो ज्यादा मतलब ये थे, तो हमको ऐसा ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो मतलब 2-3 दिन हमने क्लास अटेंड किए, क्या चालू है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ बैठते थे। मतलब ऐसा एक डर लगा था। फिर एक सोशियोलॉजी की मैम थी, तो उनसे जाके हम मिले। तो मैम थोड़ी इंग्लिश में कमजोर है, तो थोड़ा बहुत मैम बोले आप हिंदी में भी कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो उधर। लेकिन अदर जो प्रोफेसर थे वो सिर्फ इंग्लिश ही मतलब प्रीफर करते थे। तो मतलब फिर वहाँ तो मेरा मतलब ये हो गया हेल्थ इश्यू के कारण, मैं फिर वहाँ से लौट आया। और बाद में 2020 में मेरा आईएसआई में सिलेक्शन हुआ पीजी डिप्लोमा के लिए। तो आईएसआई का मतलब जो प्रोफेसर्स है वो तो बहुत मतलब हाई लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, और उधर इंग्लिश ही चलती थी। मतलब जो भी जब असाइनमेंट लिखना पड़ता था हमें, तो पहले तो फिर
अपने अपने जो वर्ड्स है वो मराठी में ये करो, फिर उसका कन्वर्सेशन हिंदी इंग्लिश में करो, फिर असाइनमेंट लिखो, मतलब बहुत टफ जाता था। और जो इंग्लिश मीडियम के लड़के थे उनका क्या डायरेक्ट टाइप करके वो कर देते थे, मतलब ऐसे बहुत ये जाता है। फिर एक एक प्रोफेसर जो थे वो मतलब सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, तो वो अच्छे थे इसमें ISI में भी। तो अब उनको पता था, 2-3 थे हम, 15 के बैच थे, 2-3 लड़के थे जो कि इंग्लिश में कमजोर थे। तो उनको पता था ये थोड़े इंग्लिश में कमजोर है, लेकिन मतलब इनको आता आता है, लेकिन इंग्लिश इनको जमती नहीं। तो वो हमको बोले कि अगर आपको पेपर भी लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, मुझे सिर्फ आपके थॉट्स जानने हैं। तो मतलब ऐसे अगर प्रोफेसर मिले तो एक ये आ जाता है, जुनून आ जाता है करने का। तो मैंने तो इंग्लिश में ही लिखा, लेकिन उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे कम मतलब इंग्लिश कमजोर होगी और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कुछ तो उनको करना पड़ेगा कि इनका ये हो जाए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल के क्लास लेने चाहिए। ऐसा मेरा तो ये है कि जब तक फ्लो में नहीं आ जाते अदर बच्चों के साथ में हम, तो थोड़ा बहुत उनको भी संभाल लेना होना। और कुछ इंग्लिश के बारे में मतलब एक दो क्लास अटेंड लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल। आपने आपके एक्सपीरियंस शेयर किए। हमारे पास अभी थोड़ा समय है। मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा कि आप तीनों इंस्टीट्यूशनल सेटअप में पढ़े हैं, खासकर पेडागोगी को लेकर। जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, जो लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, क्या दिक्कतें आती है आपको? व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग और the language which is spoken in the classroom? सर क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तो मतलब कुछ जो मतलब नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, तो इतनी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाती है। अगर कुछ सवाल भी रहा अपना, तो मतलब खड़े होके उनसे पूछने में डर सा लगता है, क्योंकि इंग्लिश कमजोर रहने के कारण कुछ अगर गलत बोल दिया तो कुछ मतलब हंसेंगे, या फिर मतलब एक डर सा रहता है, पूछ नहीं पाते हैं। मतलब आता तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्लास में। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली प्रोफेसर हमें ऐसे क्लास में पढ़ाते थे, कुछ लीगल का टर्म था, तो मैंने सब पूछ लिया था कि क्या है सर। तो सर ने बोला कि आपको इतना भी नहीं आता। तो उस टाइम से मैंने कभी भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेस फील करने का एक वो मोमेंट था। तो वो मैं कभी नहीं, सिर्फ जो बताते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता तो मैं नहीं पूछती उनको, फिर गूगल कर लेती हूँ या फिर यूट्यूब कर लेती हूँ, उनसे उससे मैं कुछ समझ देती हूँ मेरे। Shadab. This during this lockdown time, most of the classes are online, and the people from marginalized community rarely ask question. Even if the teacher asks a question, most of them say that my speaker is not working. We try to avoid this kind of situation. That is usually happens, and we have created a peer group among us, and we try to sort it out among most of the classes are very difficult. This professor will say in very speed, and they will use very new words and very academically loaded words, and we do not understand. When we also don't ask question, because sometimes if you ask question, we will feel that sometimes even if you ask question, they will immediately say come again, and we need so much courage to ask a question, and suddenly the professor will say come again, and that will demotivate us to ask further question, because it's a further embarrassment to, they're making us fun, like asking the same question again and again. So most of the time we usually mute, and we will say that my mic is not working. That is True. happening.
rightly said, Shadab. I second your experiences and all your experiences actually, Rahul, Vishakha, Shadab. Um, I remember my university time when like I entered in the campus. This is the first year of my college in the university, and I couldn't understand what my teacher is teaching. Um, like you said, they use a lot of academically loaded words. A lot of jargons are used in the classroom spaces. And I've seen or observed that many of my classmates, they do understand these jargons, and these classmates are from Delhi's posh colleges or schools. Um, and there were many like me from Dalit Bahujan community who were clueless for one entire year and unable to raise questions like you all said. Um, you want to add, want to ask you a question, like many of you have gone through this lockdown period, and most of your education happened during that time online. So, and I've heard many students sharing this thing that no, we prefer online education because that will save us from the embarrassment of being in the classroom, facing our classmates, getting judged by fellow classmates or teachers. So this is where we can put a gap. हम online education से वो distance maintain कर सकते हैं. हम जैसे आपने कहा शादाब की अगर हम कह सकते हैं कि हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है या वीडियो काम नहीं कर रहा है, सो क्या प्रेफर, मतलब इस सबको सब चीजें देखते हुए कि डू यू रियली प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन देन बीइंग इन द क्लासरूम, ऑल थ्री ऑफ यू? Even in online, sometimes they can make us feel bad. Sometimes suddenly they will ask everybody turn on the camera, and if we turn on the camera, we will see very lovely background of most of the students, and we will feel bad. Means our background will be a mess, and that is also happened. So this is very evasive. We cannot be like them. And they will teach us you are not like us. And somehow they can always teach that. But this online thing is, in a sense, is helping us to a certain extent hide our identity, and that is also true. Means if it is in the classroom, it will be more painful. But the problem with this also, the availability to network and everything is also very big problem, because most of the student might not get proper internet connection and they will miss the class, and a family might have one or two phone, and there will be some 2 or 3 people are attending the class, and some people will, and this our home usually will be very loud, and we do not have so much space to calmly sit and listen to the class. That is also a problem. राहुल, विशाखा? ऑनलाइन क्लास में मतलब गांव में अगर किया तो नेटवर्क का इश्यू है, तो लेकिन उसमें ये है कि मतलब अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछे और इंग्लिश में कुछ समझना है तो हम तो चालू ही नहीं करते, माइक ऑफ रहता था, तो वो किया जाता सर उसमें। और ऑनलाइन क्लास में सर अगर मुझे प्रॉब्लम, मेरा ऐसा है कि ऑनलाइन ही हुए हैं, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम आया हिम्मत करके हिंदी में पूछ लेता था, सर बताइए क्या है, सर बोले डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, स्पीक इन इंग्लिश, तो उसमें फिर हिंदी में पूछ लेता था, और फिर जो मेरे मतलब दोस्त थे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके सर को बोल देते थे कि उसका ऐसा ऐसा पूछना है। तो मतलब ऑनलाइन क्लास में अब मतलब थोड़ा सा ये आ जाता था, अगर ऑफलाइन रहे तो फिर डर लगता है पूछने में, और अदर स्टूडेंट जो बोलते हैं फटाफट इंग्लिश, तो अपने आप कॉन्फिडेंस अपना लो हो जाता है। तो ऑफलाइन में ऐसा होता है, ऑनलाइन में पूछ लेता था कुछ भी कर। विशाखा?
यस, ऑनलाइन जो हमारी जो क्लास वो मतलब जो है उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आई है, जैसे कि नेटवर्क इशू वगैरह हो, या फिर आपको कोई बुक्स वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल नहीं रहती थी ऑनलाइन इसमें, और उसको ऑर्डर करने के लिए उसमें भी बहुत सारे इशू वगैरह रहते थे। तो मेरे लिए तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर कैंपस में रहा तो हम लाइब्रेरी से बुक वगैरह इशू कर सकते थे, लेकिन जो ऑनलाइन था उसमें मतलब कभी कभी कनेक्टिविटी, या फिर जो अब हम गांव में रहते हैं तो गांव में लाइट वगैरह नहीं रहती थी, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो फेस करने पड़े। और मैंने एक पॉइंट मुझे बोलना था लेकिन मैंने मिस कर दिया। हमारी जो लॉ फॉर्म में है उसमें हमें इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो या फिर कुछ, तो उसमें अगर आपको इंटर्नशिप कर आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, या फिर जो आपको आगे की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलेगी। तो मैंने बहुत सारे, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन ये किया था, अप्लाई किया था बहुत सारे इसमें। तो लेकिन उसने उन्होंने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है जो इंग्लिश में नहीं है, कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। या फिर मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे अप्लाई किए थे, उसमें भी मुझे मतलब बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आया है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इसीलिए सर। थैंक यू आप सभी को। क्या हम क्वेश्चंस ले सकते हैं किसी से? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर माइक ऑफ। What's your take on being bilingual with a non-Hindi mother tongue and its intersections with English academic spaces? Oh, That is true. Means I don't know Hindi, but I found it very interesting. When I reached Delhi University, before I started speaking, most of them asked, "Are you comfortable with English?" By analyzing me. The moment I say I don't know Hindi, for them I am an English speaking person. That I found it, in a sense, very interesting. But it is quite difficult for us, means for the South Indian people to live there, especially this administrative thing. Most of the administrative things are in Hindi, and I don't complain them because I don't expect them to speak English, because sometimes they're also like us. Most of these are clerk, or they don't want to speak in English. राहुल, विशाखा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इंग्लिश ऐसे इंस्टीट्यूट में हो लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो आप इंग्लिश भी नहीं जानते हो और हिंदी भी नहीं जानते हो, तो ऐसे सिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है? वो तो बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा फिर। मतलब हिंदी भी नहीं आता, अगर मैं मराठी मीडियम से अगर डायरेक्ट गया इंग्लिश मीडियम में, अगर मुझे हिंदी भी नहीं आती तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा किसी से, ना कुछ पूछ पाऊंगा जब तक मतलब मैं मेरे ऊपर काम ना करूँ इंग्लिश इंग्लिश सीखने तब तक मुझे बहुत मतलब वहां पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें मतलब अगर ये कॉन्फिडेंस गिर गया एक बार तो मतलब छोड़ देना ही बेहतर रहता है उस लड़के के लिए जो कि मतलब हिंदी भी नहीं जानता और इंग्लिश में भी कमजोर है, और अपने मतलब मराठी भाषा में मतलब मदर टंग में मतलब कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से तो वो छोड़ ही देगा सर, कोई भी अगर रहा तो मतलब ऐसे टिक नहीं पाएगा वहां तक। विशाखा, आपको कुछ कहना है? यस सर,
यस, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसको छोड़ दोगे कि आप वहां पर नहीं सरवाइव कर पाओगे अच्छे से। सो सर मतलब पहले 2-3 महीने जो रहते, अगर हम किसी भी मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो पहले 2-3 महीने रहते वो बहुत हार्ड रहते हैं। मतलब इंग्लिश कमजोर होने के कारण थोड़ा बार समझने के लिए मतलब नया प्लेस रहता, नए लोग रहते, नए प्रोफेसर रहते, तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए पहले 2-3 महीने मेरे हिसाब से बहुत हार्ड है। बाद में मतलब सीखते सीखते फ्लो में आ जाता है सर, जो कि मेरे साथ हुआ है। पहले 2-3 महीने मुझे बहुत हार्ड गया, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में जब मैं उसके ऊपर काम करने लगा, मतलब जो है वो जो दिया वो करने लगा, अलग से पढ़ने लगा, तो मैं फ्लो में आ गया था। तो मैं मतलब मैनेज कर लिया था बाद में। ये जो मेरा 1 साल का डिप्लोमा था, पहले 2 महीने मुझे हार्ड गया, फिर बाद में मैं मतलब सर्वाइव कर पाया, क्वेश्चन भी पूछने लगा था सर से, और इंटरेक्शन भी बढ़ा था मेरा उनके साथ, दोस्त भी बन गए थे ऑनलाइन में ही। तो हो जाता है सर, मतलब 2-3 महीने काम करने मतलब अपने ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है अगर बड़े इंस्टीट्यूशन में गए तो। ये मेरा सवाल है आप तीनों से, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सी वो स्पेसिफिक चीज कहते हो, जैसे शादाब ने अपने टॉक में कहा था कि बुक बिकम्स योर फ्रेंड, तो क्या वो छोटी छोटी चीजें करते हो आप कैंपस में जिससे आप कुछ सीख पाओ, लैंग्वेज सीख पाओ, या फिर कैसे वो नेविगेट कर सके दोस्तों के साथ बात करते समय, तो क्या कौन सी चीजें आप करते हो खासकर लैंग्वेज को लेकर? एनी ऑल थ्री ऑफ यू प्लीज। सर मतलब जब लेक्चर चलता है तो मैं अलग से मतलब जो नए नए वर्ड्स आते हैं वो अलग से लिख लेता हूँ कि वाह ये अपने को समझ नहीं आया, तो क्लास होने के बाद में हम इसका मीनिंग देख लेंगे, तो वो करते हैं। अगर प्रोफेसर कुछ बताते हैं, नया वर्ड आया तो वो लिख लेते हैं, अगर कोई टर्म नहीं आई तो वो लिख लेते हैं, बाद में उसका मीनिंग देख लेते हैं और फिर मतलब समझ में आ जाता है। और उसके अलावा जो कि बुक्स पढ़ता हूँ, इंग्लिश में न्यूज़ देखना, और ये सब करता हूँ सर, मतलब इंग्लिश कर इम्प्रूव करने के लिए। विशाखा, शादाब, एनीवन? जब मतलब प्रोफेसर हमें जो क्लास में पढ़ाते थे उसमें जो भी न्यू वर्ड्स वगैरह है वो मैं लिख लेती या फिर उसको बाद में समझ लेती जो भी है। और मैंने एक और मतलब जो इंग्लिश की जो मूवीज है मैंने वो देखना स्टार्ट कर लिया था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं वेब सीरीज या फिर मूवी वगैरह या फिर जो इंग्लिश सॉन्ग है वो सुनती थी। और जो भी कुछ जो क्लास में जो पढ़ाते थे उसको मैं पहले यूट्यूब वगैरह कर ली थी, फिर उसको समझ लेती थी, फिर उसको अच्छे से नोट डाउन वगैरह कर लेती थी और जो मुझे क्या उससे समझा उसकी मैं समरी लिखती थी। और यही मैं अभी भी करती हूँ, रोज न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ, बुक्स वगैरह रीड करती हूँ। और जो मतलब जो बात करने का है मुझे अभी भी प्रॉब्लम आती है जब मैं इंग्लिश में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मुंह से वो निकलेगा ही नहीं। मतलब आता है आपको लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं पर भी नहीं आता कि आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली कि आपको वो आता है। तो अभी भी मैं उससे टैकल कर रही हूँ कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लेकिन उनको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आपको सब कुछ पता है, वरना नहीं। तो कर रही हूँ कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, बुक रीडिंग करना। सो apart from this is means everybody follow this thing, watching movie and reading books. Apart from that thing, I also follow another thing. I have a small radio, and in this radio I can hear the Malayalam news, and after some time the same Malayalam news in English. I used to do that. Then we will understand. Initially the entire 15 minutes news will be in the Malayalam. After some time this same news will be in national English language. I also do that. Thank you, all of you. I remember a few years back, Chandrabhan Prasad, an Indian Dalit thinker, came up with an idea of goddess of English.
And taking the inspiration of that, a community from this village called Banka in Uttar Pradesh built a temple of English goddess. तो मुझे लगता है अभी अभी सारा आशीर्वाद जो है, all the blessings are going to the Savarnas, and हम तक वो blessing आने के लिए थोड़ा time लगेगा. So let's assert, and thank you all. Thank you, three of you, for joining for this panel. I'll hand over it to Ravikant. Thank you all. Jai Bhim. Jai Bhim, thank you all. That was an amazing panel. It's amazing to listen to all of you and all of your stories. Shadab, Vishakha, Rahul, Nilesh bhai, thank you so much for speaking so openly and really kind of exposing the kind of problems that that are very evident, jo education ke system mein, that are very evident in small things actually. Like Shadab was also mentioning that the teacher will come and say that the class is like a fish market. These examples, or like when Vishakha was saying कि आपका English नहीं अच्छा है तो आप मराठी में कर लो. So this idea, instead of solving problems for us or by the examples that they use, and even what Rahul was saying is that हमको constantly एक marginalization में डाला जाता है. So I think what your experiences from different institutions, different backgrounds, Rahul has background in agricultural studies, Vishakha in law, Shadab has worked in a management institution right now in social work, if I'm not mistaken. And all of these different experiences across institutions इस बात को दर्शा रहे हैं कि they're showing this, that एक कुछ major issue is going on, right, which is not talked about. And hopefully in the some of the important questions you've raised in the next coming panel, we will be able to kind of respond to that, because in the next panel we are getting some of the senior scholars and voices who have also come through a lot of similar experiences and have kind of theorized about these ideas. So it would be lovely to hear from them also in the next panel. So thank you for this explosive and amazing opening to day 2 of Ayyankali conference. It was amazing to hear all of you. All the best for your further academic journeys. We'll all stay in touch and keep this network going. Thank you. For our audiences, we'll come back at 12 noon. We'll take a short 10-minute break. We'll start with the next panel at 12 noon exactly. Thank you, Jai Bhim. See you at 12.